Good morning, students. In Dynamics of Machinery, today we see or start the chapter number 1, Dynamic Force Analysis of Mechanisms. In previous session, we have seen the detailed syllabus, teaching scheme, examination scheme, and contents, list of experiments in detail about this subject. In this session, we see about the In this session, we see basic intro, then D'Alembert principle, equivalent offset inertia force, dynamic analysis of four-link mechanism, and dynamic analysis of slider crane mechanism. So, dynamic forces are associated with accelerating masses. As all the machines have some accelerating parts, dynamic forces are always present when the machines operate. ठीक है, जो हमने बेसिक इंट्रो के अंदर भी डिस्कशन किया था. In situations where dynamic forces are dominant or comparable with magnitudes of external forces and operating sheets are high, dynamic analysis has to be carried out. जब फोर्सेस बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी वो मूवमेंट बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस भी बढ़ जाते हैं. ठीक है, उस टाइम पे हमें ये देखना जरूर. So as an example, in the case of rotors which rotate at speeds more than 8000 rpm, even the slightest eccentricity of the center of mass from the axis of rotation produces very high dynamic forces. So this may lead to vibrations, rear noise, even the machine failure. ठीक है, तो ये डायनेमिक का स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हाई रोटेशन पे कोई भी मशीन कंपोनेंट मूवमेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा भी इधर उधर उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है तो हायर वाइब्रेशंस, नॉइज, रियर क्रिएट हो सकता है. तो इसीलिए डायनेमिक स्टडी और उसके बेसिस पर उसकी डायनेमिक फोर्सेस हमें स्टडी करने रहते हैं. अभी हम देखेंगे D'Alembert's प्रिंसिपल. So D'Alembert's principle states that the inertia forces and couples and external forces and torques on a body together give the statical equilibrium. जब भी कंडीशन इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इनर्शिया फोर्सेस और कपल्स और दूसरा जो एक्सटर्नल फोर्सेस है और उसके साथ जुड़ा हुआ टॉर्क दोनों एक साथ आके खड़े रहेंगे, तब वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आके खड़ा रहेगा. सो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी of matter by virtue of which the body resists in any change in velocity. So inertia force Fi is equal to minus Fg. So where is the m is the mass of the body and Fg is the acceleration of center of mass of body. I think these all of the study in the kinematics of machine and theory of machine in the semester 3. You already the study about the inertia force, torque, external forces, couples, positive couple, negative couple, etc. So the negative sign, here we see minus mf gravitational g. So negative sign indicates that the force acts in the opposite directions to the that of the acceleration. The force acts through the center of mass of the body. Similarly, an inertia couple resists any change in the angular velocity. So inertia couple Ci is equal to minus Ig alpha. So where Ig is the moment of inertia about an axis passing through the center of mass G and perpendicular to the plane of rotation of the body, and while alpha is the angular acceleration of the body. So while these both are in equilibrium, that are in the together work, that we can say that is the in statical equilibrium condition. So that is the inertia force Fi is equal to minus F minus m into Fg, and while we see inertia couple Ci is equal to minus Ig into alpha. यहाँ पर I है वो moment of inertia है
ठीक है, जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मास का, और दूसरा जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसको कंसिडर करते हो, और जो अल्फा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो एक्सटर्नल जो भी फोर्स है, ठीक है, हम उसको सिग्मा एफ लेते हैं, F1 F2 F3 एटसेट्रा, और दूसरा है एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ में कंसर्न करता है, तो उसको हम सिग्मा टी से दिखाते हैं। सो सिग्मा टी इज इक्वल टू TG1 TG2 TG3 एटसेट्रा, ठीक है। तो डीएलमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो सम है फोर्सेस का, ठीक है, और कपल है, ठीक है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल टॉर्क, वो जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं तब सिस्टम जो है वो उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सो sigma f plus fi is equal to 0 and sigma t plus ci is equal to 0. So these equations are similar to the equation of a body in static equilibrium, means sigma f is equal to 0 and sigma t is equal to 0. This suggests that first the magnitudes and the direction of inertia forces and couples can be determined, after which they can be treated just like those static loads on the mechanism. Thus a dynamic analysis problem is reduced to one requiring the statical analysis. मीन्स कितने फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नल डायरेक्शंस में, कितनी एक्सटर्नल टॉर्क लग रही है, ठीक है, कंसिडरिंग द सेंटर ऑफ मास जी। उसके बाद जो इनर्शिया कपल है, ठीक है, और एफ आई मीन्स द इनर्शिया फोर्स, उसको बारी बारी देखते जाना है। और यदि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो जो सिग्मा एफ है वो 0 होगा और सिग्मा टी है वो भी 0 होगा। तो दिस इज द डी-एल्बर्ट्स प्रिंसिपल। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स, मीन्स इन द प्लेन मोशंस इन्वॉल्विंग एक्सेलरेशंस the inertia force acts on the body to its center of mass. However, if the body is acted upon by forces such that the resultant does not pass through the center of mass, a couple also acts on the body, ठीक है। जब मूवमेंट कर रही है कोई चीज और जब इनर्शिया फोर्स लगती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो फोर्सेस की जो लाइंस है, जो रिजल्टेंट है, वो एग्जैक्टली वो सेंटर ऑफ मास जो है वहां से पास ना भी होती हो, तो एक कपलिंग क्रिएट होता है, ठीक है, पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स। So in graphical solutions it is possible to replace the inertia force and inertia couple by an equivalent offset inertia force which can account for the both. This is done by the displacing the line of action of the inertia force from the center of mass. The perpendicular displacement h of the force from the center of mass is such that the torque so produced is equal to the inertia couple acting on the body, ठीक है। तो ऑफसेट कितना होगा, जैसे कैम फॉलोअर में भी हमने ऑफसेट देखा है, ठीक है, उसी तरह से इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स का कितना रहेगा तो हम एच को लगा के वो देख सकते हैं। दिस इज डन बाय द डिस्प्लेसिंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इनर्शिया फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एंड द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, दैट इज द डिनोटेड बाय एच ऑफ द फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। सो इस तरह से कुछ होगा, टी आई इज इक्वल टू सी आई, यानी एक्सटर्नल टॉर्क कितने लग रहे हैं, ठीक है, और सी आई मीन्स कपल, जो इनर्शिया कपल है, ठीक है, दिस इज द इनर्शिया कपल सी आई, वो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। और टी आई जो है टॉर्क, ठीक है, टी आई जो है इनर्शिया कपल एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो एट दैट टाइम द टॉर्क while in considering the offset, so inertia force कितना है और डिस्प्लेसमेंट जो वर्टिकल है परपेंडिकुलर वो कितना है, ठीक है, इज इक्वल टू सी आई। तो एच को निकालना है तो कपल इनर्शिया कपल डिवाइडेड बाय जो इनर्शिया फोर्स है वो हम करेंगे तो हमें वो ऑफसेट उतना जो है वो मिल जाएगा। सो सी आई के बारे में अभी हमने देखा माइनस आई जी इंटू अल्फा, और एफ आई के बारे में माइनस एम इंटू एफ जी।
तो और ज़्यादा डिटेल से इनर्शिया को ट्रांसमिट करना है तो सिंप्लीफाइड करना है तो m इंटू के स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय एम एफ जी, एम कैंसिल हो जाएंगे तो के स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय एफ जी. So H is taken in such a way that the force produces a moment about the center of mass which is opposite the sense of the angular acceleration. ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन से हम H आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना ऑफसेट्स में इक्विवेलेंस इनर्शिया फोर्स रिक्वायर्ड है. उसके बाद आता है डायनेमिक एनालिसिस ऑफ फोर लिंक मैकेनिज्म्स और दूसरा होगा स्लाइडर बार मैकेनिज्म्स. तो डायनेमिक एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अभी हमने देखा कि मान लो एक चीज़ 8000 आरपीएम पे घूम रही है और थोड़ा भी उसका एसेंट्रिसिटी इधर उधर हुआ तो ड्रास्टिक चेंज वाइब्रेशंस में, नॉइज, रियर, वो सब में हमें देखने को मिलेगा. तो इसीलिए डायनेमिक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. तो उसके ये प्रोसीजर स्टेप्स है. अपकमिंग सेशंस के अंदर उसके न्यूमेरिकल से इसको ये प्रोसीजर स्टेप्स को हम अच्छी तरह से डिटेल से भी देखेंगे. तो पहला है ड्रॉ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम ऑफ द मैकेनिज्म फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बाय द यूजुअल मेथड्स. ठीक है, स्केल डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, ग्राफिकल मेथड है. उससे सबसे पहले हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम, वो मैकेनिज्म किस तरह से काम कर रहा है वो ड्रॉ करना है. उसके बाद दूसरा स्टेप है डिटरमाइन द लिनियर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर्स ऑफ मासेस of various links and also the angular accelerations of the links. उसके बाद तीसरा है calculate the inertia forces and inertia couples from the relations like the inertia forces Fi is equal to minus F into minus M into Fg और inertia couple is equal to minus Ig into alpha. तो वो हमें calculate करना है. उसके बाद replace Fi with equivalent offset inertia force to take into the account Fi as well as Ci. So assume equivalent offset inertia forces on the links as static forces and analyze the mechanism by any of the methods. ठीक है, तो this is the procedure steps for the four link mechanism. सबसे पहले हमें जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम है मैकेनिज्म का उसको यूजुअल मेथड से ड्रॉ करना है. उसके बाद जो लीनियर एक्सेलरेशंस है, वेरियस लिंक्स है, उसके बीच के एंगुलर एक्सेलरेशंस के लिंक्स है, उस सभी को डिटरमाइन करना है. उसके बाद इनर्शिया फोर्स और दूसरा इनर्शिया कपल, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है. उसके बाद ऑफसेट जो इनर्शिया फोर्स हमने देखा उसको कंसिडर करते हुए Fi और Ci को देखना है. और इक्विवेलेंट जो ऑफसेट इनर्शिया फोर्सेस हैं वो सभी स्टैटिक फोर्सेस, एनालाइज मैकेनिज्म्स, सभी मेथड से उसको आइडेंटिफाई करना है. सो दिस इज द स्टेप्स और प्रोसीजर फॉर द डायनेमिक एनालिसिस ऑफ फोर लिंक मैकेनिज्म्स. उसी तरह से स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो है उसके अंदर भी यही सब स्टेप्स रहते हैं. ठीक है, तो यही सब स्टेप को फॉलो करते हुए हम उसमें एनालिसिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Okay, so in this session we have seen the basic things in of starting of first chapter. सबसे पहला डायनेमिक फोर्स क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमें डायनेमिक फोर्स को स्टडी करना पड़ता है. ठीक है, और डायनेमिक फोर्स से क्या क्या उसकी इफेक्ट आती है. उसके बाद हमने देखा कि भाई एक स्टैटिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे कहते हैं और वो क्या है. तो उसके लिए एक डी एल्मर्ट्स का प्रिंसिपल है कि इनर्शिया फोर्स और कपल्स. ठीक है, मीन्स इनर्शिया फोर्सेस एंड इनर्शिया कपल्स मीन्स Fi एंड Ci. और दूसरा है एक्सटर्नल फोर्सेस एंड टॉर्केस मीन्स सिग्मा F एंड सिग्मा T. ये सब साथ में मिलके जब एक स्टैटिकल काम करेंगे तब एक हमें स्टैटिकल इक्विलिब्रियम मिलेगा. ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स का बाद में हमने इक्वेशन उसका डिटेलेशन देखा. उसके बाद इनर्शिया कपल का देखा
एक्सटर्नल फोर्सेस जो लगते हैं सिग्मा एफ, F1 F2 उसके बारे में देखा। एक्सटर्नल टॉर्क इज सिग्मा टी। तो जब हम एल्बर्ट्स का प्रिंसिपल लगाते हैं तो कुछ कंडीशन ऐसी बनती है, सिग्मा एफ प्लस एफ आई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा टी प्लस सी आई इज इक्वल टू 0। और जब हम कहते हैं कि दैट इज द इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो जो सिग्मा एफ है और सिग्मा टी है वो हमें 0 मिलेंगे। उसके बाद में हमने देखा इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स का कितना किस तरह से रहेगा, ताकि जो भी मिसमैच हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो उसके लिए हमने देखा टी आई इज इक्वल टू सी आई, और जहाँ पर टी है वो ऑफसेट टॉर्क, ऑफसेट के बाद इनर्शिया फोर्स के बाद जो टॉर्क लगती है वो एफ आई इंटू एच इज इक्वल टू सी आई, उससे एच निकलता है के स्क्वायर अल्फा बाय एफ जी, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये डायनेमिक एनालिसिस फोर लिंक मैकेनिज्म के लिए और स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए प्रोसीजर स्टेप्स देखे। ओके, सो रिव्यू द सेशन एंड सबमिट द आस्क क्वेश्चंस आंसर ऑन गूगल क्लासरूम। Number 1, explain the D'Albert's principle. Number 2, explain the equivalent offset inertia force. Number 3, explain procedure for dynamic analysis of four-link mechanisms with an example. Explain the procedure for dynamic analysis of slider crank mechanism with an example. Okay, so refer the session and submit this as questions answer on Google Classroom. Thank you. Happy learning.